Yes, can we start? Now this is question 7 and it is based on SA 505. एक्सटर्नल कंफर्मेशन के स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग पर ये बेस्ड है. नाउ इसमें दो तीन चीज़ें हैं देखने लायक, ध्यान से देखिए. पहले मैं रीड कर रहा हूँ, बट बिफोर आई रीड आई होप यू रिमेंबर एक्सटर्नल कंफर्मेशन दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन एंड नेगेटिव कंफर्मेशन. आई एम अज्यूमिंग दैट यू हैव रेड SS 505 थॉरोली. इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सटैंटिव प्रोसीडर्स जो बेसिकली आप देखोगे स्टॉक लाइन विथ थर्ड पार्टीज, डेटर्स बैलेंस, लोन कंफर्मेशन बैलेंस, इस टाइप के आइटम्स के लिए यूज किया जाता है, यूजुअली at the balance sheet date or near the balance sheet date. Now these confirmations के जो replies आते हैं वो auditor के पास आते हैं. वो client के पास जाएंगे तो वो कुछ गड़बड़ भी कर सकता है, तो replies have to be made directly to the auditor. And if no replies are sent by the debtor or the creditor, then in that scenario auditor carries out alternative procedures to check and verify those things. And sometimes what happens, the client doesn't share the details of any debtor to the auditor to seek external confirmation. तो इसका मतलब ये नहीं कि auditor directly इस report को modify कर दे. He will first try to assess the reasons, and if he feels reasons are valid, okay, he will carry out alternative procedures. But if the reasons are not justified, it is a case of limitation on the scope of audit. Okay? तो आइए इस छोटे से question को कर लें हम. Messrs. TPR and Associates have been appointed as the auditors of Octopus Limited for the financial year 1920. During the course of audit, the auditor notices that there is a significant change in the number of debtors of the company. The auditors have decided to check debtors account in detail. Audit के दौरान auditor ने notice किया that there is significant change in the number of debtors. बहुत सारे changes हो रहे हैं. The company has made various provisions like these and these, इस टाइप के नाम आपने देखे. During the current year, the auditor attended the physical verification of the inventory being carried out by the management. यानी कि हो सकता है 501 भी पिक्चर में आए. The auditor notices that there is no substantial change in the bifurcation of amount of items representing the liability side of the balance sheet of Octopus Limited. Still, the auditor understands that he needs to check the liability side in detail. Further, the company has also recognized various incomes like interest income, dividend income, which auditor understands needs to be checked in detail. The auditor is of the understanding that certain matters need to be reported under CARO. तो अभी तक ऐसा कुछ डिटेल्ड कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, बट माइंड कुछ बोलने लगा है कि शायद इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर आने लगे. सबसे पहले डैश इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन. पढ़ना शुरू करिए. दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट्स and whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not within the control of the entity. तो ये आपके accounting knowledge से भी आप इसको कर सकते हैं. Start reading it please. पढ़ना शुरू करिए. Yes. तो the first question as I told you, मैं repeat कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए. ये आप अपने accounts class में भी सुन चुके. This is nothing but contingent liability. Now, इसमें देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. इस टाइप की चीज़ों को अंडरलाइन करना चाहिए क्योंकि कई बार करेक्ट भी पूछते हैं. यहाँ पर पूछा गया इज नॉट करेक्ट, लिखा है बहुत कुछ है. ऑल इन्वेंट्री यूनिट्स शुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, ये तो बात सही है. इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट और NRV विच इज लोअर, ये भी सही है. इन्वेंट्री बैलेंसेस डज नॉट इंक्लूड एलिमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर, सही है. और ये पढ़ के देखो, इन्वेंट्री हेल्ड बाय अ थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो हमारा ही तो इन्वेंट्री माना जाएगा. इसमें लिखा है शुड नॉट बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द इन्वेंट्री बैलेंस, ये इनकरेक्ट है. कई लोग A और B में कंफ्यूज हो जाते हैं इफ क्वेश्चन इज नॉट रेड प्रॉपरली. 7.3 जो मैंने आपको बताया था कि कुछ डेटर्स को मैं कंफर्मेशन भेजना चाहता हूं. द ऑडिटर अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि मैं उनका नाम नहीं दूंगा, आपको डिटेल्स नहीं दूंगा कंफर्मेशन के लिए, तो मैंने आपको चैप्टर शुरू होने के पहले, आज के सेशन के पहले बताया था, वी मस्ट असेस इज द मैनेजमेंट्स रिक्वेस्ट फॉर रिफ्यूजल वैलिड एंड देन अकॉर्डिंगली डिसाइड आवर ऑल्टरनेटिव प्रोसीड्यूर्स, द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट. वरना इसमें क्या लिख के दिखा रहा है, विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ही शुड नॉट रिक्वेस्ट टू दीज नॉनसेंस रिक्वेस्ट ऑफ मैनेजमेंट. ये सब तो नहीं होगा. ये पूरी सेम लाइन्स SA 505 अगर आपकी नहीं पढ़ी हुई है, यू विल नॉट बी एबल टू राइट दिस, अंडरस्टैंड दिस. ओके, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में पहले SA 505 के वो रेलिवेंट पॉइंट जो मेरे पढ़े हुए थे आपको ऑलरेडी मैंने करवा दिया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
as far as the liabilities of the company are concerned, which of the following statements are not true? So far as liabilities are concerned, ध्यान से पढ़िए, हो सकता है सारे ही ट्रू हों. Liabilities are the financial obligation. It is true. Liabilities include borrowings, trade payables. Start reading. आप खुद पढ़ना शुरू करिए इनको, बहुत सिंपल है. मेरे मार्क्ड आंसर को मत देखिए अभी. Yes, let's try. Which of the following is not true? Liabilities are the financial obligations of a company, including owners' funds. Liability includes borrowings, trade payable, and other current liability. ये सही है. Verification of liabilities is as important as of assets. तीनों के तीनों false हैं. All of the above are not true. Answer A होगा. सर ये कैसे? लाइबिलिटी साइड में तो वो सब भी आता ही, ओनर्स फंड्स. आप देखिए, एक दिन एक चैप्टर हम लोग किए थे, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसी के 9.15 का पहला लाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा. सॉरी, 9.18 का. लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ऑफ अ कंपनी अदर दैन ओनर्स फंड्स. कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स बोलते हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तो क्वेश्चन आया नहीं. इतना बड़ा चैप्टर था, 100 पेज का. सर आपने पढ़ाया था इंस्टीट्यूट मैथ से, क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में. एमसीक्यूज में उसके क्वेश्चंस बिखरे हुए थे. सो लाइबिलिटीज आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अदर दैन ओनर्स फंड्स. इट्स क्लियरली स्टेटिंग हियर. तो इसलिए बहुत डिटेल में आपको आईसीआई मैथ के पोर्शंस को इसलिए मैंने यूज किया पढ़ाने के समय, मेरे मैथ में भी. एंड ये वाला चैप्टर मैंने इंस्टीट्यूट मैथ से पढ़ाया था, पूरा 100 पन्ना. ओके. Question 7.5. Confirmation and undelivered letter should be given to the auditor and not to the client. When no reply is received, the auditor should perform alternative procedures. दोनों ही बातें सही हैं और मैंने 505 के शुरुआत में भी इन चीज़ों को बता दिया था. Is it okay? अच्छा, इसी बात पर मैं आपको एक बार ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ. इसकी मार्क्ड पीडीएफ, कई लोग क्या है ना, इसका क्लास पहले कर लिए थे, शायद इस पोर्शन से मैंने नहीं करवाया हो. तो ये मार्क्ड पीडीएफ जो आपको दिख रहा है, बहुत अच्छे से मार्क की गई है कलर पेन से. ये मेरे वेबसाइट पर भी दिया गया है. यू मस्ट ऑब्जर्व दिस इवन फॉर योर इंटरव्यू सेशंस, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं. तो यहाँ पे जो आपको इनपुट्स मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ के, इसको सिर्फ 8-10 मार्क्स का चैप्टर मत समझिए. इस चैप्टर से जो भी इनपुट्स आपको मिलने वाले हैं, दे विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इवन ड्यूरिंग इंटरव्यू, ड्यूरिंग योर ऑडिट. जब फील्ड में आप जाएंगे तो जो जो यहाँ पढ़ने को आता है, मजा आ जाता है. व्हेन यू रीड दिस चैप्टर, आप लगता है सच्ची में प्योर ऑडिट करने आप चले गए. तो इसको सिर्फ मार्क्स के एंगल से मत समझिए. इट्स वेरी बिग, आई नो. और मैंने इसका कुछ हैंड रिटन, तो हैंड राइटिंग गंदी है, हैंड रिटन पीडीएफ भी तैयार किया था कुछ हार्ड वाले टॉपिक्स का, 8-10 पन्ने का. वो भी मैं वेबसाइट पर डलवा दिया हूँ, या मुझसे आप मंगवा लीजिएगा व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो. कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने 6-7 टॉपिक्स के कुछ हैंड रिटन पीडीएफ अपना लिखा है जल्दी जल्दी एक बार, ताकि आपको चीज़ों को कैसे कंप्रेस किया जाए वो भी सिखा सकूं. इसमें मैं अगर कोई शॉर्ट नोट से पढ़ाता, रेफरेंस बुक्स के वो जो टेबल बने रहते हैं, पॉइंट्स दिए रहते हैं, तो पढ़ के मज़ा नहीं आता, फिर वो रटना हो जाता पॉइंट्स को. यहाँ डिटेल में जब पॉइंट्स को मेरे संग समझे थे और अभी रिकैप्चुलेट करोगे चीज़ों को, तब मज़ा आ जाएगा. तो यू मस्ट हैव दिस हैंड रिटन पीडीएफ, दिस मार्क्ड पीडीएफ, इफ़ यू हैव नॉट अटेंडेड इट अर्लियर, और अब आपको लग रहा है कम टाइम बचा है, तो मार्क्ड पीडीएफ को ज़रूर पढ़ना. सोए मोबाइल पर इस मार्क्ड पीडीएफ को या अपने लैपटॉप पर रख करके, that will really help you to revise this interesting chapter in a very better way. Okay, thank you so much. So we'll meet again tomorrow. Bye.